वेलकम टू एम केंटल दोस्तों। आज की टॉप न्यूज में बोरिस जॉनसन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज विजिटिंग इंडिया टुमारो. Russia says that they no longer trust the Ukrainian negotiators. And Mr. Biden, America's president, is saying that he will send more artillery to Ukraine. And Europe car sales slide down by 19% in March, and this is the ninth consecutive drop. 9 months continuously it has been dropping, and with such drastic numbers. Probably there is a reason, obviously, our crude itna महंगा हो गया, the crude is going up, fuel has touched the sky high, and there is another reason. A lot of people, after Corona or while in Corona, started working from home, and there are a lot of people who were willing or trying to desperately trying to settle in metros, metropolitans. Corona told them that no, you can be at home and in your small town or your village and do a lot. So that's what also is leading to a lot of things. So the sale of autos, along with the sale of the flats, in metropolitans, is going down. Though sales of flats is yet to appear as a downtrend, because we were already sluggish, since couple of last years. So it might not be that visible, but yes, there is a lot huge inventory which is pending and not getting sold. So that's why probably the car sales are going down ninth month consecutively, and there are a lot of other things also happening. So now, further, the Indian Economy International Monetary Fund, IMF has cut down the growth forecast by 80 basis points. Now they say that our growth will be 8.2%, which was expected to be around 8.8% or 7%. Any which was the further, Boris Johnson tomorrow will be in India. And today's figures, FII sold 3,900 crore का माल in equity आज, not that big, and DIs मतलब है तो big, but ठीक है, now we are used to. So DIIs ने आज बाइंग करी 2,645.82 करोड़ की against 3,900 करोड़ की सेलिंग ऑफ FIIs की तरफ से. सो विद दिस अप्रैल का मंथ जो है वो अब हो गया है टोटल सेल ऑफ 26,030.82 करोड़ की बाय FIIs, और DIIs की टोटल बाइंग हो गई है अब 16,713.71 करोड़ फॉर द अप्रैल मंथ. और ईयर 2022 में क्या हुआ है, अभी तक जनवरी टू अप्रैल 1,56,378.55 करोड़ की सेलिंग बाय FIIs, और उसके अगेंस्ट में बाइंग ऑफ DIIs इज 1,20,403.21 करोड़ फॉर 2022 जनवरी टू अप्रैल till date. Okay, guys, before we move on to the bank nifty analysis and levels to trade for next day, please go to the disclaimer. If need be, do pause the video and do go through the disclaimer. Thank you so much. Okay, let's move on to the Nifty and Bank Nifty. आज आई होप यू मस्ट हैव मेड गुड मनी. अगर आप मेरा वीडियो देखकर मेरे नंबर्स को टेली करते हैं और उसको फॉलो करते हैं ना, तो आज वाज अ वंडरफुल डे यार. मतलब एकदम एब्सोल्यूट डॉट पॉइंट पे हुआ है. 14 पॉइंट से निफ्टी रह गया टच करने को, वरना जो पॉइंट मैंने दिया था बिल्कुल उसी पे टच हुआ और वहाँ से वापस आ गया. और एक अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर का भी ट्रेड और ऊपर से नीचे का भी ट्रेड मिला बढ़िया से. आई होप दैट आप लोगों ने भी अच्छा सा कैप्चर करा होगा. आइए अब देख लेते हैं कि आज क्या हुआ और कैसा लग रहा है कल का मार्केट. आई होप देखिए, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, मैंने कल जो लेवल बताया था वो बताया था आपको 17,200 के करीब का. ठीक है, इफ यू लुक एट, यहाँ बताया था मैंने. तो इसमें मैंने ये बताया था आपको 17,200 को छुएगा. ये आज का दिन है पूरा. तो यहाँ से, और मैंने कहा था कि सीधा 17,000 गेन कर लेंगे. हम गेन कर लिया हमने. और मैंने कहा था कि अगर नीचे भी खुले तो भी हम 17,000 को गेन करके ऊपर की तरफ जाएंगे. और फिर मैंने बताया था कि 17,200 विल बी अ टास्क फॉर निफ्टी टू क्रॉस. वही हुआ. तो हमने वो गेन करा 17,000. उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर गए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर करते कराते ऊपर चले गए. ऊपर फाइनली लगभग 1 बजे के आसपास वी वर एट हाईएस्ट पॉइंट अराउंड 130 के आसपास, 145 के आसपास. तो वो हाईएस्ट पॉइंट क्या था, 17,186.90. मैंने कहा था
190 से 200 के बीच का लेवल होगा। तो दिस इज़ व्हाट यू नो द एक्यूरेसीज। और फिर वहीं से निफ्टी वापस घूम गया नीचे की तरफ। और मैंने कहा था कि फिर 17,000 बहुत स्ट्रांग होगा, अभी तक तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको पार करने में दिक्कत हुई तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत दिन से कह रहा था कि सपोर्ट है और ये टूटनी नहीं चाहिए थी ऐसे जैसे टूट गई है। लेकिन टूट गई इसलिए क्योंकि आखिरी में हुआ सब कुछ, और बुल्स को जो करना था वो शायद वो कर नहीं पाए, तो सुबह से वो करेंगे। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। तो फिर उसके बाद वापस ये 17,000 की तरफ आई ही नहीं। ये तो हो गई गुड स्टोरी जो मैंने कल बताया था उसके हिसाब से, और जो आज मार्केट में हुआ गुड गेन, और ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का हमने गेन करा। लेकिन अब इसमें कैच क्या है, व्हाट इज़ द कैच? कल सब लोग कह रहे थे, दुनिया भर में ये बात चल रही थी कि हम तो सारे सपोर्ट लेवल तोड़ चुके हैं, अब रिसेशन आ रहा है, मार्केट्स विल बी डाउन डाउन डाउन। और मैं एक आदमी था जो कह रहा था कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट तो वापस आएगी और आएगी और आएगी, डेफिनेटली हम 17,000 को तो रीगेन कर लेंगे। और देखिए तो आज हो गया। ठीक है, कल सारे लोग कह रहे थे डाउन है। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आज मैं फिर से कुछ और अलग कह रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट यू नो द होल वर्ल्ड इज सेइंग, बट जनरली यू नो बहुत बुलिश हो रहे हैं लोग, लेकिन मेरे ख्याल से बुलिश होना नहीं चाहिए। आइए मैं आपको एक डेली चार्ट पे एक कैंडल दिखाता हूँ, या इसको यहीं रहने दीजिए, यहाँ दिखाता हूँ। देखिए आप, ये रही हमारी निफ्टी 50 की। इसको देखते हैं डेली कैंडल में। डेली कैंडल में क्या हुआ है ये देखिए आप। इसे कहते हैं साहब, अच्छा मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, पहले बता दूं आपको कि भैया ये नाम है एंड डिफाइंड एज पर बुक्स। हाँ, तो ये बनी है बुलिश हरामी कैंडल। ये एकदम इसको बोलते हैं हरामी कैंडल। जैपनीज नेम है, ठीक है, ये जापान के कैंडल से वहां से मतलब बना है। तो ये हरामी कैंडल कहलाती है, और इसका कहा जाता है कि ये हरामी फंडा वही है यहाँ पर भी, ठीक है, नाम का भी, कि दिस लुक्स लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। तो खैर छोड़िए, खैर दो स्टोरी में नहीं जाते। बॉटम लाइन ये है कि ये बुलिश हरामी कैंडल बनी है, और ये हरामी कैंडल बहुत ही डेंजर कैंडल होती है। इसका मतलब होता है नो विन नो लूज, नो बडी हैज गॉट द कंट्रोल येट। अच्छा, और दूसरी बात अब देखिए, अब हमने क्या करा है, कल के लो को हम छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़े, बहुत अच्छी बात है। सब लोग जो आज जो स्टोरी चल रही है ना असल में, वो सब ये चल रहे हैं जो बियरिश है, वो देख रहा है कि यार देखो, कल का हाई तो ब्रीच नहीं कर पाए, इतना जोर लगाया, इतना पैसा लगाया, सारा दिन हो गया, फिर भी देखो बाद में डाउन साइड पे बंद हुए। और जो जिनका व्यू बुलिश है, वो कह रहे हैं कि देख लो भाई साहब, लो को ब्रीच करा, एक बारी में उठा के ले गए, सुबह इतना बड़ा गैप अप दिया, और उसके बाद देखो हमने वापस मुड़कर नहीं देखा, अपना लो नहीं तोड़ा। उसके बाद दिन का जो हमने जहाँ से ओपनिंग करी थी वो भी ब्रीच नहीं होने दी। बिल्कुल सही है ये भी। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल सही है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो बियर है कि बुल है मार्केट? तो साहब मैं आपको बता दूं, यही होता है कमाल हरामी कैंडल का। ये ना तो बुलिश है ना बियरिश है, ठीक है, जो जैसा चाहेगा वो वैसे देखेगा। लेकिन पॉइंट्स में बता देता हूँ आपको, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, ये कल की कैंडल है, ना इसका हाई ब्रीच हुआ है और ना ही इसका लो टच हुआ है, और ये बिल्कुल उसके सेंटर में बनी है, और अच्छा खासा ट्रेड हुआ है, विद गुड वॉल्यूम्स हुआ है। तो कोई जीता क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आज जो है इट वाज अ प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ अ विन और लूज। इट वाज नॉट अ वॉर टुडे, सो वॉर विल हैपन प्रॉब्ली टुमारो। या फिर ये दोनों के बीच की सेटलमेंट भी हो सकती है, दैट देयर विल बी नो वॉर। कल एक्सपायरी है, दोनों तरफ के प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, पुट साइड के भी कॉल साइड के भी, अगर ये साइडवेज में चले गए, और जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो दैट्स हाउ इट विल बी। अगर कल आप ऑप्शंस में प्ले करते हैं तो भाई आप लोगों को एक मेरी तरफ से एडवाइस है, कल वाली एडवाइस आपके काम आई होगी आई एम श्योर। आज की एडवाइस है कि कल छोटे छोटे प्रॉफिट लेके फटाफट से बुक कीजिएगा, और कोई साइड डिसाइड मत कीजिएगा अपनी। जनरली मैं कहता हूं कि बॉस, फर्स्ट डिसाइड योर साइड, के बुल साइड पे हैं कि आप बियर साइड पे हैं, उसके अकॉर्डिंगली लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी। बट कल के लिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी साइड को सच मत मानिएगा, और ये दोनों तरफ खिलाएगी, लेकिन रेंज शायद एक छोटी रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, किसी भी तरफ का ब्रेकआउट मुझे नहीं आता दिख रहा है कल। हालांकि जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो बहुत ही स्ट्रांगली बियरिश है, और उसके कई कारण हो सकते हैं, उसको भी मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ, अपने आप को समझा चुका हूँ। क्योंकि कल जिस तरह का फॉल आया था तो बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग कर दी थी। जिन लोगों ने कल कॉल राइटिंग करी थी उन लोगों ने आज कवरिंग नहीं करी है, क्योंकि अभी तक हाई ब्रीच नहीं हुआ है, जो रूल्स कहते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं। क्योंकि जो कॉल राइटर होते हैं वो सारे मेरे से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैं अगर ये सब जानता हूँ तो वो भी जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने नहीं करी होगी, इसलिए वो वहाँ पर इतना बड़ा बिल्डअप दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या पुट में बहुत बड़ी राइटिंग हुई है? नहीं, बहुत बड़ी राइटिंग तो नहीं हुई है। लेकिन क्या पहले की जो पुट राइटिंग थी
वो अच्छी खासी थी, हाँ थी। और अगर मैं उसको वैल्यूएशन में कन्वर्ट करूँ, तो जो पहले की पुट ऑप्शन की राइटिंग थी ना बॉस, तो वो समझिए कि आप उस समय पे एक पुट ऑप्शन जो 500 रुपये की चल रही थी उसमें उन्होंने राइटिंग करी थी, और जो कल राइटिंग हुई है वो एक 200 रुपये की कॉल ऑप्शन थी उसमें राइटिंग हुई है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो दोनों साइड में पैसा बराबर लगा हुआ है बॉस। तो कल फाइट अच्छी हो सकती है, और इसके अंदर दोनों को फायदा हो सकता है, जिन्होंने राइटिंग करी है तब, जब ये साइडवेज चली जाए मार्केट और दोनों तरफ के प्रीमियम खत्म हो जाए, वो तब होगा। तो फिर आप रिटेल समझ लीजिए डूबने वाला है। तो कल के लिए अपने पैसों को बचाने की कोशिश कीजिएगा रादर देन मेकिंग मनी। ओके, आइए, एंडिंग द कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, लेट्स मूव ऑन टू दी लेवल्स फॉर द ट्रेड के कल क्या होगा, ठीक है। तो कल के ट्रेड के लिए मैंने वो लेवल्स तो कल वाले ही हैं यार, जो अपना बताया था 17,000 आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उस पर आप नज़र रखें। दैट विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स एंड मेक प्रॉफिट्स। तो 17,000 पे सबसे बड़ी नज़र अब आप अभी कल के लिए है और आगे के लिए भी रखिएगा। जब तक 17,000 इंटैक्ट है ना बॉस, हम लोग बुलिश ही हैं, अभी तक बियरिश नहीं हुए, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और जो मैंने गैप के लिए कहा था वो गैप अभी फिल नहीं हुआ है, तो ऊपर जाएगी मार्केट, लेकिन क्या कल जाएगी उसके चांसेस बहुत ना के बराबर है। तो आइए देख लेते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी क्लोज हुआ है 17,136 पे। अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आता है 17,190 से 200 पे, जो मैं कई दिन से बोल रहा हूँ। और यहीं पे आज उसके बाद आता है 17,284, और 17,300 को पार अगर कर लेती है निफ्टी उसके बाद, तो फिर 17,440 से 50 का रेंज है जिसपे एक रेजिस्टेंस आती है, यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, क्योंकि ये गैप फिल करेगा यहाँ पे, तो हम 17,460 50 तक हो जाएगा। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो क्विक रेजिस्टेंस वुड भी 17,520 से 30 के बीच में। इफ वी क्रॉस दैट देन देयर विल बी अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑफ 17,660, जिसे पार करना विल बी अ टास्क फॉर निफ्टी। ठीक है, मैंने काफ़ी सारा बड़ा नंबर बता दिया ऊपर तक का। होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स। बाकी फिर बता रहा हूँ कि रेंज बना लीजिएगा, कल जो बनेगी उस कैंडल्स के बीच के अंदर ही चलने वाला गेम मेरे हिसाब से। तो जब नीचे टच करे तो चैनल बना लीजिएगा अपना, एक ऊपर का लेवल एक नीचे का लेवल। जब ऊपर वाले को टच करे तो पुट खरीद लीजिएगा, नीचे आए तो फिर कॉल खरीद लीजिएगा। दैट्स हाउ कल का ट्रेड रहेगा। ओके, तो अगर नीचे की तरफ आती है निफ्टी तो क्या होगा, तो नीचे की तरफ में लेवल है 17,000, पहला लेवल सपोर्ट। इसको अगर ब्रीच करते हैं हम तो अगला लेवल सपोर्ट जो है वो 16,850 से 820 के बीच में बनता है, विच नाउ शुड नॉट बी ब्रीच। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, अब ये बहुत स्ट्रांग लेवल हो गया। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर हम बियरिश हो जाएंगे, और फिर हम सीधा 16,000 15,000 तक के लेवल खुल जाएंगे। हालांकि अगला सपोर्ट जो होगा वो होगा 16,600 के आसपास, 800 के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं अपने ट्रेड्स को। इस रेंज में मार्केट के रहने के बहुत चांसेस हैं। दूसरी एक बात बता देता हूँ आपको, जो आपके कल के ट्रेड में काम आएगी। कल का जो मूव होगा वो निफ्टी के अंदर, स्पॉट में बोल रहा हूँ, स्पॉट या फ्यूचर भी आप ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट से 110 पॉइंट जब किसी एक पॉइंट से किसी तरफ मूव कर जाए, तब आप देखिएगा कि वो रिवर्सल लेगी। दिस इज विद माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज जब प्रीमियम्स गलाने हो मार्केट को साइडवेज रख कर, तो वो 100 पॉइंट ऊपर ले जाते हैं, तो पीछे की प्रीमियम जीरो आउट हो जाती है, और फिर वो रीगेन नहीं हो पाती। ऑप्शन बेसिक रूल्स जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अगर किसी ऑप्शन में प्रीमियम ऐड करना है, तो वो अगर 60 रुपए से ऊपर की ऑप्शन है, तो उसमें बहुत जल्दी से प्रीमियम ऐड होते हैं, अगर डायरेक्शन उसकी तरफ मूव हो रही है और वो एटीएम बन जाती है तो। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कोई एटीएम बनती है, ओटीएम अगर एटीएम बनती है तो वो बहुत तेजी से ऐड करती है। लेकिन अगर वो 60 रुपए से नीचे की है, तो अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती है और वो 60 रुपए से नीचे की आ जाती है, तो उसमें उसके अंदर प्रीमियम ऐड करना बहुत टफ हो जाता है। फिर वो ओटीएम से एटीएम होने के बाद भी एडिशनल प्रीमियम नहीं लेके आ पाती, तब उसके अंदर रेट टू रेट नेक टू नेक वैल्यू चलती है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कंप्लीटली प्रीमियम ऐड नहीं होता उसमें। तो इस तरह से वैल्यूएशन को ज़ीरो किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कितने प्राइस की आप खरीद रहे हैं और किस कैटेगरी से, ओटीएम से, आईटीएम से, एटीएम से ले रहे हैं। अच्छा, दूसरा और ये भी मत सोचिएगा कि आप डीप इन द मनी खरीद लेंगे तो आप सेफ हैं। दूसरा ऑप्शन प्रीमियम रूल ये कहता है कि अगर कोई
रिडक्शन फॉल इन द प्रीमियम होता है तो सबसे पहले वो हायर वैल्यूज़ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर वैल्यू। यानी कि अगर आप कोई नज़दीक की ऑप्शन देख रहे हैं जो कि 20 रुपए की है, तो आप उससे ऊपर 400 पॉइंट जाकर आप सोचते हैं कि मैं वो ऑप्शन खरीद लूँ, तो वो उस समय 420 की है तो जी 20 रुपये यहाँ पे जाएंगे, 20 रुपये वहाँ पे भी इसको बनता है क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर है। तो नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले में जो 400 पॉइंट ऊपर की आप 420 की खरीदेंगे, अगर मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव लिया तो वो 150 रुपये छोड़ देगी, जबकि 20 रुपये वाली तब भी 10 ही रुपये छोड़ेगी। वो जीरो नहीं होगी, 10 रुपये रहेगी तब भी। परसेंटाइल में इसने 50% छोड़ा उसने वहां पर, तो दिखेगा तो ज़्यादा, लॉस कम होगा, लेकिन आप वहां देखिए कि वैल्यूएशन अमाउंट कितना ज़्यादा होगा। आप वहां पे 400 रुपये लगाएंगे और 125 रुपये खो देंगे, तो आपकी डिमिनिशिंग कैपिटल हो जाती है। सो बी कॉशियस, ठीक है, दैट्स व्हाट विल बी द गेम टुमारो। आइए, तो नीचे के लेवल निफ्टी के तो हमने देख ही लिए हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो भी आज ऐसा ही गेम चला कि बढ़िया से स्ट्रेंथ थी। हालांकि आज बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कमजोर था कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी वाज शोइंग सम स्ट्रेंथ। बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाया, या दिखाई नहीं जानबूझ के, पता नहीं। हालांकि कैनरा बैंक जो कल एक बहुत बड़ा गेम खेल के गया था, आज फिर उसने बहुत अच्छा सा गेम खेला, हालांकि उतना बड़ा नहीं था जितना कल करा था। और बिग फॉल्स में हमारे जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा ये इतना बड़ा फॉल होता है, तो वो HDFC ने तो आज फिर लूज़ करा है, वन ऑफ द टॉप लूजर्स था। और रिलायंस ने आज मार्केट को फिर संभाला है, और एक नए हाई की तरफ जा रहा है। और उसके रीजंस हैं यार, मतलब देखो रिलायंस किस में है, बहुत सारी चीज़ों में है, बट अभी इनका सबसे बढ़िया बिजनेस जो गुड बेनिफिट दे सकता है उनको आने वाले टाइम में, वो क्या है? हमने देखा था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई है, तो इनको अच्छा प्रॉफिट आने वाला है उससे, और उनके रिजल्ट आने वाले हैं कल में या परसों में है, तो दैट विल हेल्प देम गेन लॉट, और वो फिर निफ्टी को संभालने के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी हमारे जो बिग वाले हैं जिन्होंने मार्केट को संभाला, वो सिर्फ 3-4 शेयर ही हैं। एक HDFC था, HDFC बैंक था, उसके बाद TCS था, और शायद इन्फोसिस था, और रिलायंस था। इन 5 शेयरों ने, इन 5 शेयरों से मिलकर आपको पता है कि निफ्टी की ऑलमोस्ट 60-70% वैल्यूएशन पूरी हो जाती है, और इन्हीं को अगर आप मूव कर दो तो निफ्टी ऊपर दिखता है, जो कि हो रहा है आज, ठीक है, दिखा है। तो ये मैनेजमेंट थी, और ये कल भी हो सकती है। तो आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। कोटक बैंक एक बहुत ही सरप्राइजिंग वाला, और सरप्राइजिंग क्या यार, खैर वो तो गिरना ही था, बट इतना गिर जाएगा पता नहीं। जब से कैनेडियन पेंशन फंड ने उनको बेचा है कोटक को, उस दिन के बाद से ये अभी तक अपने लेवल्स को गेन नहीं कर पाया। हालांकि वैसे खैर वैसे भी बहुत मूव नहीं करता है ये, बट एक अच्छे खासे 400 पॉइंट के रेंज में ऊपर नीचे करता है। तो अभी वो रेंज भी अपर वाली साइड को ही टच नहीं कर रहा है, क्यों पता नहीं, शायद किसी दिन करेगा। तो आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, क्लोज हुआ 36,314.90 पे, 14.90 पे। अगर ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो बहुत ही नज़दीक में एक रेजिस्टेंस है उसके पास, वो है 36,388 या 400 लगा लीजिए। 36,400 को अगर पार कर लेता है तो अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 36,500 पे। 500 को अगर पार करता है तो उससे अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 620 पे, और अगर 620 को पार करता है तो उससे अगली रेजिस्टेंस आ जाती है 36,800 से 820 पे, और 820 को अगर पार करता है तो 880 पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, और अगर इस सबको पार करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो एक बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगी, दैट विल बी एट 37,200 से 300 की रेंज में। इसको पार करना कल तो शायद मुश्किल लग रहा है, बट अगर हो जाती है तो फिर हम सीधा 37,650 पे पहुंच जाएंगे, और 37,650 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि फिर से एक नीचे की तरफ झटका लगे, और अगर पहुँच जाए तो, हालांकि बहुत ऊपर है, चांसेस आर वेरी रेयर, तो देखते हैं। और इसके ऊपर फिर से एक और बड़ा लेवल है जो हमेशा के लिए नंबर नोट कर लीजिए, दैट इज़ 37,950 से 38,000। इसको पार करना तो मतलब दम लगेगा, पैसा लगेगा, कब होगा देखते हैं। बट इसके बाद फिर हम, फिर से बता रहा हूँ, मैं पहले भी कई वीडियोस में कहा है, और आज फिर कह रहा हूँ, शायद कल के वीडियो के अलावा बाकी सब वीडियो में कहा, या पता नहीं कल वाले में भी कहा था, कि 38,000 अगर हमने पार करके 2 दिन क्लोजिंग दे दी ना, तो फिर तो हम मतलब बल्ले बल्ले, फिर नो लुकिंग बैक हो जाएगा, फिर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। तब तक अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट बुक करते रहिए, कैश पे बैठिए, दैट बी दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर कोई बहुत अच्छा फॉल आता है तो हम गेन करेंगे, उसमें बाय करेंगे, और अगर कहीं और ऊपर जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 पॉइंट 5-10% छूट जाए, छूट जाने दीजिए, फिर ऊपर खरीद लेंगे, क्या हो गया, है ना।
तो आइए नीचे के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ चलता है तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो 36,250 के आसपास बनती है। अगर इसको ब्रीच करता है तो अगली 36,160, और अगर 160 को पार करता है तो फिर 35,920 के आसपास सपोर्ट बनती है, और 920 को अगर पार कर लेते हैं तो 35,800 पे एक अच्छी अच्छी तो नहीं है, खैर एक नॉर्मल सपोर्ट है, ठीक है। हो भी सकता है कि ब्रीच हो जाए, बट अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी तक ब्रीच नहीं हुई है। और अगर ये ब्रीच होती है तो हमारा एक बड़ा वाला फॉल आता दिख रहा है, जिसकी वजह से उसके बाद फिर जो गेट्स हैं वो 34,000 35,000 के खुल जाते हैं। 34,800 से 35,000 के गेट्स खुल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये खुल गए और ये कहीं ब्रीच हो गए तो फिर बड़ी वाली गहरी खाई है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मेरे हिसाब से इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इन लेवल्स को आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और कल भी नोट जो किए थे उसके साथ आपने अच्छा पैसा कमाया होगा, और कल फिर कमाएंगे। विद दिस आई साइन ऑफ for the day. See you in next video. Do good trades. God bless you all. Stay healthy. Be happy. Thank you so much. See you in next video.